दोस्त लोग, एक बिग अनाउंसमेंट है। What if you mix Gangnam Style with Jia Bihar Ke Lala or have litti with kimchi? Well, the product will be very similar to someone I have with me today, Charlie from Charlie's Kahani. Namaste, namaste. Hi Charlie, welcome to India Today Global. Thank you so much for having me. So on this episode of Expat Diaries, we are going to unravel the story of Charlie. So let's take a look at what's his story and know about his India Connect. नमस्ते, मेरा नाम चार्ली है और मैं कोरियन हूँ। हम YouTube और Instagram में कंटेंट बनाते हैं। बात भी करो ना मुझसे, आओ बैठो पास तुम हमारे, कुछ प्यार से कहो ना मुझसे। Hi Charlie. So you're back in India and you're here for 2 weeks, right? Yes. So tell me about this. Do you miss Bihar? Bihar याद आता है आपको कोरिया में? याद आता है, जरूर आता है। अपने सारे दोस्त बिहार में ही हैं। तो चलिए आपके बिहार कनेक्ट की बात करते हैं. जरूर. You've been raised in Bihar, right? You were born in USA, but you've been raised in Bihar. So tell us that how did you land up in Bihar? बिहार में मेरे पेरेंट्स, मेरे डैड हाँ जी. बिहार पटना में PhD के लिए आए थे. Okay. वहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पढ़ाई करने आए थे. Okay. तो पूरा परिवार लेके आ गए. उस टाइम हम 1 साल के थे. तो डैड के साथ साथ हमको पहुँचना हुआ. And then you were like your schooling happened in Bihar, so throughout your teen you were there, right? Yes. So how was it growing up as a Korean in Bihar? मतलब अटेंशन तो खूब मिलता था. Was it good kind of attention or the bad one? Always good. मतलब good type of attention, but sometimes I took it stressfully. मतलब बहुत ज़्यादा जब attention मिलता है. हाँ जी. तो बचपन में एक बार क्या हुआ कि लोग हमसे बात करना चाहते थे किसी भी तरह. तो वो they knew my name. इधर उधर से सुने होंगे चार्ली. तो एक लड़का आता है, ये probably class 1-2 का बात है. एक लड़का आता है, बोलता है चार्ली what is your name? तो मतलब he knows my name but just wanted to make a conversation. तो वो मेरे दिमाग में बचा हुआ है. Because you were the misfit in that, you know, if I could put it like that. So you could not see somebody who's similar to you around, right? Yes. So let's talk about your family. Your father, you said that moved to India for a PhD, right? Yes. So how was it for your family, for your parents specifically, to adapt to this culture in India? I think for them it must have been pretty difficult because for me I was here since 1 year old. Yeah. So basically I was born here almost. So that was very natural for me. My parents actually had to go to a language institute in Mussoorie. Okay. There's a language institute and I think they spent a couple of months there learning language, learning Hindi. So my mom speaks Hindi very well. She sometimes speaks better than I do. Okay. My and dad- this is despite you growing up here and Yeah, going to yeah. school. I mean, you know, होता है ना जैसे कि अपने लोकल बंदे के साथ जो बात करते हैं वो तो मेरा नेचुरल है. But my mom like speaking professional language, like proper Hindi. Yeah. वो mom is better. How about your dad? Dad is in the middle. मतलब वो समझते हैं, बोलते भी है थोड़ा सा, but not very fluent. So tell me this, being a Bihari Korean, when people look at you and then, you know, the words come out of your mouth and it's Hindi with a Bhojpuri accent, people get shocked, right? Or what's the most common reaction you get? Or how do people interact with you when they see you speaking Hindi? Right. So एक recently हम मुंबई से दिल्ली ट्रैवल कर रहे थे और एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होता है ना. तो सिक्योरिटी चेक कर रहे थे आराम से. पीछे वाला एक आदमी था, ही वाज जस्ट टैपिंग ऑन माय शोल्डर. बोला कहाँ से है भाई? एंड आई वाज स्पीकिंग इन हिंदी हियर एंड देयर लिटिल बिट. ही हर्ड इट मे बी. और बोला कहाँ से हो भाई? तो हम बोले हम साउथ कोरिया से हैं. तो मतलब गुस्सा होके बोला झूठ मत बोलो. गुस्सा होके बोला, एकदम गुस्सा होके झूठ मत बोलो भाई. हाँ, कैसे हो सकते हैं कोरियन? हाँ, कैसे हो सकते हैं कोरियन? मतलब तुम यहाँ नेपाल से होगे या फिर है ना नॉर्थ ईस्ट से होगे. हम बोले नहीं भाई, हम साउथ कोरियन है. तो बोला तुम्हारा हिंदी इतना अच्छा है, तुम साउथ कोरियन नहीं हो सकते हो, तुम झूठ मत बोलो. तो हम गए, एयरपोर्ट था, पासपोर्ट लेके घूमते हैं ना, पासपोर्ट दिखाई सीधा, एकदम शॉक. बाप रे बाप, ये तो सही में साउथ कोरियन है. और वो थोड़ा सा ड्रंक था, आई थिंक थोड़ा सा ड्रंक था. बट ही वॉज टेलिंग एवरीवन ऑन द एयरपोर्ट, भाई देखो भाई साउथ कोरियन हिंदी बोल रहा है, हिंदी देखो. पूरा क्राउड हो गया था. So then let's talk about 3 things that you love about India and you miss when you're back in Korea.
3 things. Yes. First, chill nature. Chill nature for sure, because this is very, so इंडिया में जैसे किसी से भी स्ट्रीट्स पे भी किसी से भी हम बात करते हैं ना, तो कुछ अनकंफर्टेबल नहीं लगता है. किसी से भी हम आराम से बात कर सकते हैं, जाके भाई क्या हाल है, क्या हो रहा है, बात करते हैं कभी कभार. और लोग हमसे पूछते हैं भाई कहाँ से हो, क्योंकि मे बी आई एम फॉरेनर, तो ईजी होता है. लेकिन या दैट वन. उसके बाद दूसरा है फ्रीडम. थोड़ा सा फ्रीडम फील. Freedom in terms of? Freedom in terms of I don't know, like emotionally I feel free when I'm in India. Like you're saying there are less restrictions? Less restrictions. मतलब खास करके पटना में थोड़ा restrictions कम है. और जैसे ये And तो we're talking about societal restrictions. societal here, yes? restrictions. Societal, not societal. Then? I'll probably say law restrictions. Okay, legally restricted. legal restrictions. थोड़ा जैसे, I mean, it depends on how you take it. Are you just basically saying that the law and order is not in a very good condition? So it depends. It depends how you take it, right? Okay. It depends how you take it. लेकिन जैसे एक्सीडेंट्स भी होते हैं ना, हाँ जी. कोरिया में एक्सीडेंट अगर होता है तो लोग तुरंत केस या फिर मतलब लीगल ऑर्डर पे चल जाते हैं. Okay. यहाँ पे The है कि suing culture. basically, हाँ. yeah. स्यूइंग कल्चर. यहाँ पे है कि थोड़ा टक्कर भी लगा गया, गुस्सा तो होंगे, थोड़ा मारपीट तो नहीं होगा, बातचीत होगा, लेकिन मैनेज हो जाता है. मैनेज हो जाता है, वो मैनेज वाला कल्चर. Not every case goes to like the court basically. Yes. Third thing, Friends. friends. Yes. You have a lot of friends here. I have a lot of friends. So what are a few memorable moments for you while growing up in India that you remember? You know, some fond memories from your childhood. दोस्त के साथ बाइक पे घूमना. यस. और दिवाली होता है ना, हाँ जी. दिवाली के टाइम पटाखा छोड़ना. और कभी कभार लोग नटखट हैं तो पटाखा जो रॉकेट होता है उसको ज़मीन में ही छोड़ देते हैं. हाँ. तो वो सब हमको बहुत गुस्सा आता था, बट मेमोरेबल है. मेमोरेबल है. Okay. So you said you were the different one in your school. Did you face any bullying because of that? नो, नेवर. Never. बुलिंग तो कभी नहीं हुआ है. इनफैक्ट ऑपोजिट, मतलब लोग इतना प्यार देते थे कि वो कभी कभार ओवरवेलमिंग लगता था, बट ऑलवेज सपोर्टिव, ऑलवेज. दिस फॉर श्योर. So tell me about 3 Indian dishes that you would like to take back to Korea. पहला एग रोल. Okay. यस, एग रोल पटना में सही बनता है. Okay. So Patna ka egg roll. पटना का चिकन एग रोल. Chicken egg roll. Okay. चिकन एग रोल. दूसरा बिरयानी, बिकॉज आई लव बिरयानी. Yes. तीसरा बिकॉज ये बिहार का अपना खास है, मतलब बिहार इज नोन फॉर दिस लिट्टी चोखा. Litti chokha. Of course. Yes. So ये बताइए, how did you enter this field of content creation? Because we see there's a lot of fans of you. They want to hear you speak Hindi, and Yes. you don't look Indian, you look Korean. So when we see this Hindi touch or this Bhojpuri touch coming out of this mouth, it's always very fascinating for people. Yeah. So how did you land up here in the field of content creation? How did this start? सो आई न्यू कि हिंदी मेरा एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिक ट्रेट है, तो इसको किसी तरह यूटिलाइज करना था. हमको गाना गाने का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा कि कहाँ से हम सुनेंगे आपसे गाना अभी फिर. हाँ, जरूर. गाने गाने का शौक है, बट नेवर प्रोफेशनली ट्रेंड. हम सोचे कहाँ से स्टार्ट करें कि थोड़ा टाइम भी मिल जाए और कुछ थोड़ा वो प्रोसेस मज़ेदार हो, सीखने का प्रोसेस. तो हम सोचे क्यों ना अपने इस जर्नी को हिंदी में डॉक्यूमेंट करें. तो दैट वाज द स्टार्ट. तो आई स्टार्टेड शेयरिंग माई स्टोरी ऑन यूट्यूब, शेयरिंग माई लाइफ स्टोरी, शेयरिंग द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम लाइफ. उसके बाद इंस्टाग्राम में मेरा एक दोस्त था. इंस्टाग्राम से एक्चुअली मेरा करियर स्टार्ट हुआ है. इंस्टाग्राम में मेरा एक दोस्त है, पटना विज़िट किए थे एक दिन. ये यूट्यूब स्टार्ट किए हुए 2 साल के बाद का बात है. पटना विज़िट किए, वो बोला भाई व्लॉग बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे क्लिप डालते हैं. तो वो क्लिप गया, 2 दिन के अंदर आई थिंक मिलियन it went viral. वायरल चला गया. हाँ जी. तो तब से इंस्टाग्राम में भी डूब गया. उससे पहले आई वाज थिंकिंग ओनली यूट्यूब. So it was an accident by which Yes. you got into Instagram, and since then you've been a full-time content creator. Yes. Before you moved to Korea, how was your life here, and how has it changed? After moving. I'll speak about Patna. Okay. So
आई लेफ्ट पटना इन 2015. Okay. तो 2015 के पहले डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं था. मतलब था KFC, डोमिनोज अब पहुंचा था, मतलब बिफोर मी लीविंग पहुंच गया था लास्ट टाइम. अभी जब गए Just for you, just in time. या जस्ट इन टाइम. उसके बाद वापस हम लौटे आई थिंक 2022 में विजिट किए थे. उस टाइम डेवलपमेंट लगा जैसे कि इतना कैसे बदल गया. मतलब 6-7 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड क्लीन हो गया, जगह साफ हो गया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स और ब्रिजेस और ये सब. तो हमको लगा यार तरक्की कर रहा है. यस. और फिर आप कोरिया गए, राइट? तो कैसे आपकी लाइफ में बदलाव आया? कैसे, हाउ डिड योर लाइफ चेंज व्हाइल मूविंग बैक टू कोरिया? इन कोरिया. Yes. Also because like you had been brought up here, right? So it was not maybe then a cultural change for you maybe, but then still a geographical change for you. Yes. And also the pace of life must have changed, right? Yes. So yes. how was that for you? So it's very difficult to make comparison because I was a student when I was in India. Yeah. Now I'm an adult after graduation in Korea. तो comparison exact तो नहीं हो सकता है, but culturally अगर बोले तो इंडिया में थोड़ा चिल कल्चर होता है. मतलब आराम से रहते हैं हम लोग, कोई काम हड़बड़ी में नहीं करते हैं. हाँ जी. कोरिया में हर चीज़ फास्ट फास्ट होता है, जल्दी जल्दी. इसको कोरियन में पाली पाली बोलते हैं, पाली पाली. पाली पाली. आप कहीं भी जाइएगा पाली 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 पाली, इधर उधर से सब. तो वो वाला कल्चर थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है अभी भी. बस में हो, ट्रांसपोर्टेशन कहीं भी हमेशा टाइमली, थोड़ा सा भी लेट नहीं, बस भागते हैं सब लोग, भागते रहते हैं. Let's talk about 3 things you would like to take, you would like to bring from Korea to India that you think, you know, India needs those 3 things. वाओ, टफ. कोरिया से इंडिया. कोरियन फ्राइड चिकन. कोरियन फ्राइड चिकन का अलग ही टेस्ट है. जैसे KFC तो कॉमन है ना, फ्राइड चिकन तो मिलते ही है. हाँ जी. कोरियन फ्राइड चिकन खास करके कोरियन स्पाइस के साथ, दैट आई वांट एवरीवन टू ट्राई. और दिस अदर थिंग कॉल्ड तक्पोक्की. Okay. Tteokbokki is a rice cake, Yeah. spicy rice cake. Okay. That's very tasty. That's kind of equivalent to street foods in India. Like Okay. जैसे egg roll हो गया यहाँ का, वैसे tteokbokki हो गया कोरिया का. Okay. और and then one more is there's a noodle. Okay. There's a noodle called japchae. Okay. Japchae. That's That eaten sounds on. cute. Yeah, sounds cute, right? वो हम लोग special occasions में खाते हैं. Okay. तो वो Special occasions like जैसे शादी हो गया या Okay. फिर birthdays. कोई फंक्शन, बर्थडे हो गया, Okay. उस ओकेजन में. ऐसे तो मतलब रेस्टोरेंट्स में आमतौर पे मिल सकते हैं, बट इट इज फॉर मेंट Special. फॉर स्पेशल Okay. ओकेजन्स. It's like halwa basically. It's like an equivalent of halwa. हलवा स्पेशल में खाते हैं, Yeah, halwa is Oh. for special occasions. लेकिन ऐसे भी खा लेते हैं लोग, है ना, हाँ, उसी correct. तरह. यस यस. Okay. Now we're talking about, you know, India and South Korea. Tell me, what are the similarities you find in both the cultures? सिमिलैरिटीज. हाँ जी. एक तो है जो रिस्पेक्ट कल्चर है अडल्ट्स के प्रति, Yeah. क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे लैंग्वेज में ही होता है ना, अंकल आंटी कैसे हैं, जी लगा के जो बोलते हैं. तो दैट्स सिमिलर. हम लोग भी कोरिया में जी लगा के कुछ मतलब Tell us the words that we. जैसे हम लोग नमस्ते बोलते हैं ना, दैट्स अ लिटिल प्रॉपर पोलाइट, राइट? Yeah. कोरिया में नमस्ते अन्योंग हसेयो, Hmm. बट यू जस्ट वांट टू से हाय, क्या हाल है, Hmm. तो यू जस्ट से अन्योंग. Okay. So that's like different. A informal and a formal version. हाँ, दोस्त Okay. को अन्योंग बोलेंगे, लेकिन बड़े आदमी को अन्योंग हसेयो, I know that. इस टाइप से. यस. And what other similarities can we find in both the cultures? लैंग्वेज में एक्चुअली देयर आर क्वाइट अ फ्यू सिमिलैरिटीज इन Okay. लैंग्वेज. Okay. जैसे बचपन में हमको याद है मोजा, है ना, मोजा, Yeah. सॉक्स. Yes. बट इन कोरिया मोजा का मतलब हैट होता है. सेम वर्ड, Yeah. मीनिंग डिफरेंट है बट सेम वर्ड. Okay. और हो गया बाल. Hmm. बाल हेयर होता है ना, हाँ जी. कोरिया में बाल फुट होता है, Okay. पलट के उल्टा, उस टाइप से. लैंग्वेज और कोरियंस को हिंदी सीखने में काफ़ी आसानी पड़ता है क्योंकि ग्रामर भी सिमिलर है Hmm. और टोनेशंस जो है, प्रोनाउंसिएशन वो काफ़ी सिमिलर है. Hmm. यस. Okay. And what are the differences? You've talked about the laid back culture and the hustle culture that we see in Yes. both the countries. Yes. Other than that, like when you meet people, right? What are the differences you find? The cultural difference you find in both the countries? इंडिया में जब आप ट्रेन में बैठते हैं Hmm. तो आप बगल वाले से बात करते हैं, हाँ
Hansi. है ना, आराम से Like by the time you get on the train, you have a friend. यू हैव अ फ्रेंड, Yeah. वो कोरिया में नहीं मिलेगा. Okay. हाँ, It's स्पेशली इन it's that सोल. tight. Yeah, like Yeah. people only like सिर्फ इंडिविजुअल टाइप का है. Not all, but कल्चर थोड़ा सा सराउंडिंग इस तरह से बना हुआ है जैसे कि मतलब डोंट टॉक टू मी, लाइक जस्ट माइंड योर बिजनेस टाइप. सोल में सोल. So बाकी it's regions का I capital. don't know, It's very capital. commercialized also, right? लेकिन दिल्ली में भी ट्रेन में अगर बैठेंगे तो बात तो हो जाता है. हाँ, correct. हाँ. You've been born in USA, right? हम्म. You were raised in India. Now Hmm. you're in Korea, and you don't know if you'd like to settle in any of these three countries for sure, right? So, what is home for you then? Wow, that's another very difficult question. आप difficult ही question पूछ रही हैं. It's very tough for me to find a home. क्योंकि I was born in US, Yeah. brought up in India, but my parents are Korean. Yeah. It's all three different countries, right? तो इंडिया में पले बड़े हैं. I feel most comfortable like emotionally. दिमाग से सबसे ज़्यादा comfortable यहाँ पे feel होता है. क्योंकि पता नहीं ये मतलब जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचते हैं ना और लोगों को देखते हैं इस टाइप ऑफ ईज टाइप का फील होता है कि भाई The यहाँ पे soul of this country. हाँ यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई कुछ टोकेगा नहीं. कोरिया में है कि कंफर्ट है. डेफिनेटली कोरिया क्वाइट डेवलप्ड एंड वेरी कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल. सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर मस्त है, लेकिन इमोशनली थोड़ा सा ऐसे It's very इजी uptight. इजी फील नहीं होता है. अमेरिका है, इट्स काइंड ऑफ मिडल. अच्छा डेवलपमेंट भी है लेकिन उतना टाइट भी नहीं है. लेकिन फिर अमेरिका में मेरा कोई जान पहचान नहीं है. तो लाइक देयर इज समथिंग मिसिंग फ्रॉम एवरीवेयर एंड यू आल्सो हैव समथिंग फ्रॉम एवरीवेयर. So maybe मतलब- home is everywhere then. दैट्स द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन. लाइक आई कुड कंसिडर होम इज एवरीवेयर. पहले लगता था कि मेरा कहीं घर नहीं है, अब हम सोचते हैं हर जगह मेरा घर है. You've also met other content creators in Korea who are also making content on India, right? You've built a bunch of community there. Yeah. So how does it work out for you guys? You know. Yeah, so as soon as I went to Korea, that Yeah. was my first goal. Okay. Goal type का कि I need a community because content creation is lonely. It is. ये बहुत अकेला का गेम है. तो अगर आपके पास टीम नहीं है, बिजनेस भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं शायद, तो अकेले करना बहुत मुश्किल है. यू ऑलवेज नीड अ टीम. टीम कहने का मतलब कम्युनिटी, Hands. अब पार्टनर्स जो भी हो. तो आई वॉज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स जो कि कंटेंट बनाते हो. जिन जंग ब्रदर्स के साथ आपने इंटरव्यू किया, दे आर एक्चुअली माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स. Okay. जिन इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, जंग इज हिज फ्रेंड, Yeah. जिन का दोस्त. Hands. तो वी ऑल बिकेम फ्रेंड्स. तो जिन को हम बोले भाई तुम भी स्टार्ट करो. जैसे एंड्रू, यू नो एंड्रू. Yeah. एंड्रू भी मेरा बचपन का दोस्त है. Okay. So Where did you meet him? In Bihar. In Bihar only. Oh, you guys went to the same school? No, his parents sent him to my house for studies. Okay. So हाँ. you were the studious kid. I'm I guessing. was the studious kid. Yes, yes, That's right. yes. सोचे होंगे कि थोड़ा इंस्पिरेशन मिल जाए. And that is how you guys became friends. Yeah, that is how Drew and I became friends. तो मेरे YouTube स्टार्ट करने के बाद ड्रू का याद आया. हम बोले भाई ड्रू क्या कर रहे हो? तो Yeah. बोला जॉब कर रहे हैं. तो हम बोले हम YouTube कर रहे हैं. तो वो बोला भाई हमको भी YouTube करना है. तो हम बोले भाई करो. उसके बाद हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट किए. फिर वो अभी तो अलग ही लेवल पे है. You know, you're talking about goals in life. Let's talk about one of your goals, which is singing. Yes. Yes. Who's your favorite singer? And also, tell us about your upcoming album. I don't have a favorite, Okay. but I like many singers. Indian singers में बोले तो अरिजीत सिंह, Okay. अरमान मलिक, recently Anuv Jain. Oh yeah. Yes, and ladies में I heard this singer named Jonita Gandhi. Oh yes. She is very nice. She has very good vocals. Also, I got to know he was very famous, but I got to know him recently. Sanam Puri. Oh From yeah. Sanam He has a band. Yeah, with Sanam us, Band. yeah. He's amazing. So all back when I was in school, उस टाइम बहुत पॉपुलर वायरल गया था. Yeah. सबको यही गाना गा रहा था. स्कूल में कोई भी फंक्शन हो बस यही गाना. तो इट गोज लाइक दिस. तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं आना, अपने तू दिल का बता दे, चाहूँ मैं आना. इस टाइप से. Beautiful. Now tell us about your upcoming album, right? गाना बन गया, म्यूजिक वीडियो भी शूट हो गया है,
लेकिन अभी रिलीज नहीं हुआ है, पता नहीं उसका नाम बताएंगे आप? हाँ, नाम है प्यार मैं तुझसे। अब ये नाम चेंज भी हो सकता है, बट रफ टाइटल है Initial name is. या इनिशियल नेम इज प्यार मैं तुझसे। Well, thank you so much, Charlie, for speaking to India Today Global, and we wish you all the best for your upcoming album and your journey at large. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।